सलोनी, सिर्फ तुम्हारे मार्क्स ही ऐसे हैं या तुम भी ऐसी हो? तुम भी ऐसी हो? व्हाट यू मीन? Hey friends, today we are going to discuss about the detailed strategy for Set A paper, that is the corporate and economic law. सिर्फ तुम्हारे मार्क्स ही ऐसे हैं और तुम भी ऐसे हो? What does it mean? That is, I do not talk anything without any evidence. So let's discuss what my statement basically mean. तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर व्हाट आई मीन बेसिकली. So what happened exactly? That is, I cleared my SCPM Set B paper in the very first attempt. Though I know the marks is not that much good, इतने अच्छे नहीं है. But you took how much attempt? Oh my god, you took attempt number 1 and it was unsuccessful from your side. When you appeared for Set A paper, you got just 40. Then you again sit for the same Set A paper and you got just 36. And it was also unsuccessful. Then finally, when I sit for the third time, then I got 70 out of 100 and that time I was successfully cleared my Set A paper. So, hey friends, those, some of you already know me, and those who are watching me for the first time, my name is Saloni. I am a CA final aspirant. And today we are going to discuss about my true story to score 70 marks in Set A paper. Why I could not clear in my first attempt, in my second attempt, and finally I cleared in my third attempt. That was the Set A paper, that was basically the corporate and economic law. Before any conclusion, first watch the video till then only decide whether Set A paper is that much difficult, whether it genuinely takes a time to you, or it was just because of your negligence or carelessness. Not if I was so careful or taking so much care for my Set A paper ना, तो probably ऐसा ना होता. But जो हो चुका है, just be out of it. लग गया है अटैम्प्ट तो इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है. बट सेव योर एटलीस्ट मेरे 1000 रुपीज तो पानी में गए व्हेन एक्चुअली मेरा अटैम्प्ट लगा था 1. देन आफ्टर दैट सेकंड, तो आई वाज थिंकिंग भाई साहब मेरे 1000 रुपए पानी में जा चुके हैं, बट आई कांट अफोर्ड इट एनी मोर. अब मुझसे नहीं होगा, बस अब जो भी है आई वांट टू रीड और आई वांट टू गिव माय बेस्ट शॉट दिस टाइम एटलीस्ट, सो दैट हो जाए बस. तो आई नो दोज हु आर वाचिंग, तो प्रोबेबली उनका अटेम्प्ट होगा सेट ए का और उन्हें कहीं ना कहीं जाके डिफिकल्टी आई होगी. दैट्स व्हाई द ओनली रीजन दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर इन दिस वीडियो और वाचिंग मी एट दिस मोमेंट, तो मोस्ट ऑब्वियस द रीजन इज दैट योर अटेम्प्ट फॉर सेट ए is about or you are preparing for the same. So without taking your much time, I know the cost of time when exactly you are watching the same. You don't want any bakwas from anybody. फिर चाहे कोई भी हो. Okay, so let I begin my story, my true story. But firstly, I will share you what are the resources I referred, how exactly I scored 70 marks in my Set A paper. You already know that I have already made a video that how I cleared my Set B paper in my very first attempt. तो उसको हम साइड में कर देते हैं. Currently we are talking about Set A only. तो what happened exactly? I was the new scheme student. मुझे कुछ भी नहीं आता था लॉ में. एंड वन प्रॉब्लम वाज विद मी कि मैं किसी का लेक्चर नहीं देख सकती हूँ. मुझे नींद आने लग जाती है, स्पेशली इन द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, कि मेरे से ज्यादा लेक्चर जो है किसी का देखा नहीं जाएगा. मैं खुद पढ़ रही हूँ तब तक ठीक है, मुझे जितना समझ आ रहा है वो सारा भी दैट वाज ऑल राइट. बट इफ आई वॉच समबडी वीडियो, तो इट्स टोटली दैट आई वाज फॉलिंग टू स्लिप और आई वाज गोइंग टू और फीलिंग लाइक स्लीपी, बिकॉज बहुत ज्यादा वीडियो किसी का मुझसे नहीं हो पाएगा. ओके, तो मतलब कि मैं किसी की क्लास नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज मैं इस कंडीशन में नहीं है कि मैं किसी की क्लास ले लूँ, फिर उसको देखूँ, फिर खुद से पढ़ूँ, फिर देखूँ, और ऐसा मेरे से नहीं होने वाला था. तो मैं क्लास के फेवर में नहीं थी, तो क्लास नहीं. नंबर 1. नंबर 2 इज अब मेरे को नाउ इंस्टीट्यूट की क्लास. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आईसीए वाली क्लास. तो जब मैं सेट बी का पेपर दिया था, मैंने सेट बी का पेपर दिया था, तो तब एक्जैक्टली क्या हुआ था कि सेट बी का पेपर जस्ट लॉन्च ही हुआ था और मतलब मैंने ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स थे उसी में सेट बी दे दिया था और वो हो गया था. तो उससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि सेट बी होगा नहीं होगा, इजी आएगा टफ आएगा, या किसी के पीडीएफ से मैंने रेफर किया, ऐसा कुछ नहीं था. मैंने पूरा पूरा मॉड्यूल पढ़ा था और उस मॉड्यूल के बेसिस पे और अतुल अग्रवाल सर के जो नोट्स थे उस बेसिस पे मेरा हो गया था. उस वजह से मतलब मैंने बहुत ज्यादा वीडियो रेफर नहीं की थी सेट बी के पेपर में, बिकॉज उसमें भी वैसे ही मुझे नींद आती थी. तो मैं खुद से जितना हो सकता था उतना पढ़ा, मैंने पूरे पूरे मॉड्यूल पढ़ ले, उस बेसिस पे उससे क्वेश्चन सारे ड्राफ्ट हुए थे, तो सेट बी इजीली हो गया था. मैंने इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया था खुद को कि सेट बी कैसे करूंगी और ऐसा. अब नाउ कमिंग टू द सेट ए. तो सेट ए में क्या हो गया कि मेरा सेट बी हो गया था, तो मुझे एक तरफ से थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हुआ कि हाँ चलो ये हो गया. बट उसके बाद क्या हुआ था कि जब सेट ए वाला चांस आया, तो सेट ए के दोबारा मतलब मेरा वो लेक्चर्स आईसीए वाले लेक्चर्स लेने थे, वो सारे चल रहे थे. और उसके बाद तो मैंने लेक्चर्स को इतना प्रॉपर्ली नहीं देखा. सेट बी में मैंने स्टार्टिंग का जो एक मॉड्यूल है उसका पूरा लेक्चर बैठ के देखा था, मुझे अच्छा लगा था बिकॉज मैं फ्री थी, तो मैं आराम से इजीली देख रही थी.
बट जब सेट ए वाला टाइम आया तो मैंने उसके लेक्चर्स को इतना पोज कर करके और मतलब जनरली मतलब मैंने बिल्कुल ना के बराबर उन्हें देखे, ठीक है वो कंपलसरी आज जो हम अटेंड करने हैं जो स्टूडेंट्स अब कर रहे हैं वैसे ही बस वो वैसे ही चल रहा था, मैंने उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं डाला। इवन कैसे देखा मतलब इधर मैं कुछ और कर रही हूँ, उधर वो लेक्चर्स चल रहे हैं, इधर कैमरा ऑन है, मैं बैठी हूँ बट मैं कुछ और कर रही हूँ, तो ऐसा ही सारा चल रहा था। तो मुझे मुझे सीक्वेंस भी नहीं पता था कि सेट ए में क्या क्या है, कैसे है और क्या सारी चीजें हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था अबाउट द सेट ए। उसके बाद चलो मैंने ये सारा कंप्लीट कर लिया जैसे तैसे, एंड आई जस्ट बुक माई स्लॉट। तो ये सारा मैंने कर दिया था और मैंने अपना स्लॉट बुक कर दिया था। अपना स्लॉट बुक कर दिया था तो बीच में क्या है कि बहुत सारे फंक्शंस आ रहे थे और वहां मुझे जाना नेसेसरी था, क्योंकि मैं हर बार ये फैक्ट रिकॉल नहीं कर सकती कि मेरे एग्जाम से मेरे एग्जाम से मेरे एग्जाम से, बिकॉज मैं हर टाइम यही बोल रही होती हूँ मेरे एग्जाम से। तो डेट वाई उस टाइम में ये एक्सक्यूज नहीं दे सकती थी, जनरली नहीं दे सकती थी, बिकॉज वो मेरा फैमिली फंक्शन था, मुझे वहां जाना बहुत जरूरी था, बिकॉज बाद में मेरे एग्जाम्स नवंबर 24 वाले आने ही वाले थे, मुझे पता था। तो फिर मैं उस टाइम ये रीजन नहीं बता सकती थी कि मेरे एग्जाम से, तो मैंने जैसे तैसे एडजस्ट किया और मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। एक बार रीडिंग मारी थी और उसको रीड मार के मैंने क्या किया था, शुभम सिंगल सर वाली, ओके 1 मिनट में आपको रिसोर्सेज बता देती हूँ कि एग्जैक्टली मैंने किन रिसोर्सेज से 70 स्कोर किया था। तो नंबर 1 सेट ए वाला, ये हमारे पास मॉड्यूल है, सेट ए का मॉड्यूल और ये 2 मॉड्यूल। तो एससीबीए में तो मैंने मॉड्यूल पढ़ी थी, पर जब ये सेट ए का चांस आया तो मैंने पढ़ा था, पर इसका कोई मतलब नहीं है, ट्रस्ट में कोई मतलब नहीं है। यू कैन जस्ट इंडेक्स देख लो और उसको साइड में रख दो, बेटर होगा इंडेक्स देख लो, क्योंकि अगर उसको पढ़ा और ऐसा हुआ कि मतलब पढ़ भी लिया, दिन भी दिए और फिर लास्ट में जाके सब कुछ ब्लैंक हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कोई मतलब नहीं है। आपने इतना एनर्जी और इतना एफर्ट और इतना टाइम और सब कुछ दिया है और फिर बाद में इफ यू रिग्रेट लेटर, तो बेटर है कि इसको इतना ना पढ़े। बट इसमें कुछ कुछ चीजें पढ़ सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो एक बार तो इसको मैं साइड में कर लेती हूँ, इसमें से भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू लेटर, बट ऐसा है कि एक बार के लिए इसको साइड में रखूँ। उसके बाद आई हैव हेमंत सोमानी सर पीडीएफ, ये भी आपको मिल जाएगा सारे रिसोर्सेज से, हेमंत सोमानी सर का पीडीएफ मैंने लिया था। उसके बाद शुभम सिंगल सर की बुक मैंने यूज की थी। और उसके अलावा जो बहुत ज्यादा नामवान है सेट ए पेपर के लिए वो है मनमोहन गुप्ता, और जो वो मार्केट में वो जो पीडीएफ घूमता रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने कुछ रिसोर्सेज जो है यूज किए थे, रिसोर्सेज यूज किए थे, उसमें आ जाता है कि उसमें मैंने जो वीडियो, बेसिकली जो वीडियो है, वीडियो में अब मैंने क्या है कि सेट ए का पेपर एक नहीं दो नहीं 3 बार देखा था। तो आइडियली कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क की है मैं वो बताना चाहती हूँ। तो जो ऋषभ बेन एक स्टूडेंट है, आई डोंट नो अभी वो एट प्रेजेंट सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नहीं, बिकॉज एक ग्रुप उनका क्लियर था और एक का पता नहीं, एक पेंडिंग चला था उस टाइम उनके, रिसेंटली जो है वीडियो लॉन्च हो रहे थे। बट उसमें वो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इवन सारे नोट्स एक तरफ और वो वीडियो एक तरफ, मतलब अगर आप वो वीडियो देखोगे और वो पीडीएफ पढ़ोगे तो भी प्रोबेबली आपका क्लियर हो जाए। उसके अलावा भी आपको और चीजें करनी है, आई एम एडिंग फर्दर और मैं चीजें बता रही हूँ, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऋषभ बेद के जो, ऋषभ बेद एक साउथ वाली साइड के स्टूडेंट है कोई, मे बी वो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आई डोंट प्रॉपर मुझे नहीं पता, एक ग्रुप क्लियर है फाइनल का, एक अभी हो गया या नहीं आई डोंट नो। उनकी वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी, उन्हीं की वजह से, मतलब उनकी वीडियो की वजह से, उस पीडीएफ की वजह से, और उसके अलावा बीओएस पे पोर्टल पे जो क्वेश्चन है उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। इसी वजह से मेरा स्कोर जो है वो 70 पे आ गया, कहा मेरे 40 भी नहीं आ रहे थे और कहा मेरा स्कोर 70 पे पहुंच गया। तो ये रीजन भी था, दीज आर मतलब दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि कैसे मैंने स्ट्रेटेजाइज किया बाद में, क्योंकि एक बार दे दिया 2 बार दे दिया, क्या मजाक चल रहा है सीरियसली। तो ऐसा चल रहा था। उसके बाद तो मतलब ये वाला हेमंत सोमानी का पीडीएफ, अब क्या होगा कि आप मेरी तरह न्यू स्टूडेंट होंगे, जैसे लोग का आईबी नहीं आता होगा या जो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लो है नहीं आता है, कैसे आएगा, बिकॉज फाइनल तो हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, और लो की जो है हमने कोई क्लासेस नहीं लिए, बिकॉज हम न्यू स्कीम वाले स्टूडेंट है। तो दिस इज सो ऑब्वियस कि नहीं आता होगा। तो क्या हुआ था कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं स्टडी मटेरियल भी पढ़ती थी। स्टडी मटेरियल मतलब पहले नहीं पढ़ा फिर नहीं पढ़ा, ये सारा हटा देते हैं हम करेंगे, कैसे पढ़ा, हाउ एग्जैक्टली आई स्कोर 70। तो क्या हुआ कि स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ना नॉनसेंस है, ट्रस्ट मी इट विल बी टोटली नॉनसेंस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग स्टडी मटेरियल से करोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। तो स्टार्टिंग में ऐसा होना चाहिए, मैंने क्या किया था कि शुभम सिंगल का 300 शुभम सिंगल सर के 300 पेजेस मैंने पढ़ लिए थे। एक और जो टीचर है लोग के उनका नेम क्या है, आप उन्हें जानते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, उनका जो पीडीएफ है वो 90 पेजेस का है। उनका पीडीएफ अगर आप पढ़ते हो तो वो भी बहुत अच्छा है, आई कांट डिनाई द फैक्ट, वो भी बहुत अच्छा है। उन टीचर का नेम क्या है, मैं यूट्यूब कर लेती हूँ करेंटली, बिकॉज मुझे भी प्रॉपर उनका नेम ऐसे बता दूंगी। बस मैं उन टीचर का मैंने बनाया था स्पेशली, मतलब तो ऐसा था कि मेरे पास शुभम सिंगल सर का पीडीएफ था। शुभम सिंगल सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल रही यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, इवन बट ऐसा था कि मैंने शुभम सिंगल सर का जो नोट्स का 300 पेजेस का जो उन्होंने बनाया था स्पेशली, मतलब जो भी उनका वो 300 पेजेस का चल रहा था उसका मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया था। अब जब मैंने ऑलरेडी प्रिंट आउट निकाल दिया है तो मैं किसी और का वापस फोन से और स्क्रीन से क्यों पढ़ूंगी, तो मैं मेरे पास वो था। तो फिर मैंने क्या किया, उसको रीड करना स्टार्ट किया, जितना मुझे समझ आ रहा था उतना समझने की कोशिश की। उसके बाद देन आई फर्दर मैंने क्या किया, अब मैंने ऑलरेडी शुभम सिंगल सर के उस पीडीएफ से पढ़ लिया। अब फिर शुभम सिंगल सर की वीडियो से मुझे, क्योंकि मुझे बोर होता है थ्योरी में ज्यादा, मैं ज्यादा इतना वीडियो और ऐसा नहीं देख सकती, मुझे नींद आने लग जाती है। तो फिर मैंने क्या किया, शुभम सिंगल सर का उस पीडीएफ से पढ़ा। उसके बाद मैंने
हर्ष गुप्ता सर की वीडियोस देखी, उनके मैराथन्स और ये देख लिए, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव वे में, मतलब उस टाइम मैंने जब व्हेन आई फाइनली स्कोर 70 मार्क्स, तो उसमें मैंने कोई चैप्टर स्किप नहीं किया, बिकॉज स्किप करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो स्किप करना नॉट प्रेफरेबल फ्रॉम माय साइड, तो स्किप नहीं किया। तो मैंने क्या किया था दैट टाइम, आई व्हाट आई डिड, दैट इज, तो व्हाट आई डिड दैट टाइम कि आई रीड, आई जस्ट रीड, बिकॉज मुझे आता नहीं था, तो मैंने रीड किया, 300 पेजेस पढ़ लिए, और उसके बाद हर्ष गुप्ता सर की सारी वीडियो देख ली, मैराथन देख ली, ताकि एक एक चैप्टर जो है कवर हो जाए। बट उसके बाद भी मुझे इतना बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, सो ऑब्वियस, बिकॉज कोई लेक्चर देखे नहीं है, रीड मार लिया है, जितना समझ आया होता ठीक है। फिर उसके बाद हर्ष गुप्ता सर की वीडियो देख ली, जितना समझ आया होता ठीक है। उसके बाद ये दोनों हो गया, तो कुछ कुछ चीजें समझ आने लगी, कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी आफ्टर अ पीरियड। फिर उसके बाद जो बहुत ज्यादा शॉर्ट, अब हमें क्या है कि सर के इतने बड़े बड़े मैराथन है, हर्ष गुप्ता सर के भी इतना सारा उन्होंने कंटेंट कवर किया, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव पेपर के हिसाब से नवंबर 2023 तक वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से कवर किया है। अब हमारे तो एमसीक्यूज है, तो हमें इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने का, इतना हर टॉपिक हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे अंडरस्टैंडिंग वाले पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद मैंने ऋषभ वेद की वीडियोस को रेफर किया, और मैंने एनालाइज की ऋषभ वेद की जो वीडियोस है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रही है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उस स्टूडेंट ने भी एग्जाम दिया था, और उसे भी पता था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तब बाय द टाइम मैं भी दे चुकी थी, तो मुझे भी क्लिक हो गया था कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर मैं बस वीडियो देखते गई वन बाय वन, और बहुत कंसाइज वे में नोट्स भी बना रखे थे। तो फाइनली मतलब ये दो चीजें तो हो गई, ऊपर ऊपर से कि रीडिंग मार ली, फिर वीडियो देख ली, उसके बाद अब आता है लर्निंग पार्ट, तो कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेगी। तो अगर लर्न नहीं किया ना, तो यू विल कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन की 2 डेज है, 3 डेज है, 6 मंथ्स है, या फिर कितने मंथ्स है, या फिर ऐसा आरओसी है, या आरबीआई है, सेबी है, ऐसी छोटी छोटी चीजों में यू विल कंफ्यूज देन। फिर आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ा या नहीं पढ़ा, भर हो गया, क्योंकि कुछ तो आ ही नहीं रहा है। तो फिर उस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई, बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिली उस वीडियो से। उसके अलावा तो बेसिक ये था। उसके बाद पोर्टल पे भी आपको, इसके बाद मैं आपको पूरा पीडीएफ दिखाऊंगी कि मैंने एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती थी, ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट हो गए, अब उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में भी वही हाल होगा, तो बहुत ज्यादा बुरा, मतलब हम बोल सकते हैं कि इतना बुरा किसके साथ होगा, एक नहीं, दो नहीं, तीसरा, और वो भी किसमें, सेट ए वाले पेपर में। और क्यों लग रहे, उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगी। तो ये सारा हो गया। तो फिर अब आते हैं हम आईसीआई के बीओएस पोर्टल पे। आईसीआई के बीओएस पोर्टल, उससे पहले जब मुझे लोग समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे किसके वीडियो में इंटरेस्ट नहीं आता था, तो मैं यूजुअली स्टूडेंट की लोग वाली वीडियो नहीं देखी थी मैंने। बट उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, और उससे मुझे ये पता चला कि आईसीआई के बीओएस वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द टाइम आई हैव ऑलरेडी गिवन 2 अटेम्प्ट, तो मुझे ये पता चल गया था कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। उसके बाद मैंने एक्जैक्टली आई रेफर दी आईसीआई बीओएस पोर्टल के क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन एक्जैक्टली सिमिलर थे, कुछ क्वेश्चन एक्जैक्टली, और एमसीक्यूज में भी दो है, कुछ तो जनरल वाले हैं और कुछ केस बेस है। तो केस बेस में भी मेरे सारे नहीं हुए थे, केस बेस में मेरे कुछ हुए थे, बट कुछ में जो मुझे क्लिक हो रहा था कि वाइंडिंग अप के क्वेश्चन ऐसे से आए थे, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम जब वो एक्जैक्टली आए थे। और जब मैंने वापस रेफर किया, तो सिर्फ वही क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए थे। तो मतलब मैं शॉक हो गई, ये क्या हो रहा है, पोर्टल के क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, मतलब वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, सब कुछ मैच हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहे हैं वहां पे। ऐसा भी हो रहा है, ट्रस्ट मी, अगर आपने किसी ने अटेम्प्ट दिया हो, या फिर आईसीआई के व्यूअर्स वाले क्वेश्चन किए हो, और फिर वहां पे भी, बट वन थिंग, आईसीआई के व्यूअर्स पोर्टल पे बहुत सारे क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन में जो जनरल क्वेश्चन है वो इतना नहीं आ रहे, बट जो केस बेस्ड स्टडी वाले वो क्वेश्चन आ रहे हैं। उस क्वेश्चन में भी कुछ चैप्टर जो है उनके एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ रहे थे, यानी कि वाइंडिंग अप वाले आ रहे थे, और भी दो चार और चैप्टर होंगे उनके आ रहे थे। तो ट्राई करना कि एक बार पूरा कोर्स हो जाए, तो एक बार गो थ्रू कर लो, खुद की प्रिपरेशन होती रहेगी, और साइड बाय साइड वो सारी चीजें भी कवर होती रहेगी, तो ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा एट दैट। मतलब या तो चैप्टर वाइज कर लो, या ऐसे तरीके से कर लो। और इसके बाद आ जाते हैं हम, तो ये सारा तो स्ट्रेटेजी हो गया। तो मटेरियल, उसके बाद स्टडी मटेरियल, अब अगर स्टडी मटेरियल को पूरा पढ़ने बैठे, तो वो इट विल बी मार्क सच एज अ नॉनसेंस। व्हाई इट इज नॉनसेंस, बिकॉज सेट ए पेपर है, इतना पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दूसरे भी सब्जेक्ट्स है, और हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है। बट इसमें जो चैप्टर्स है, तो आई में क्योंकि कुछ जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी गिवन द अटेम्प्ट ऑलरेडी ट्वाइस, एंड आई वाज सिटिंग थर्ड टाइम, तो मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन एक्जैक्टली क्या है। क्वेश्चन एक्जैक्टली जैसे कि डायरेक्टर वाले से जो न्यूमेरिकल पार्ट से, उसके मैंने सारा इसमें से नहीं पढ़ा था सारा, पर मेरे को लगा कि है ना, कुछ चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल पार्ट भी इंस्टीट्यूट इज आस्किंग, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टर्स वाले चैप्टर्स के जितने भी एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स जो थे ना, मतलब थ्योरी और वगैरह वो नहीं, पीछे के क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन, एमसीक्यूज वाले, मतलब पीछे वाले सारे के सारे एमसीक्यूज तो मैंने स्टडी मटेरियल के सारे किए थे। मतलब मैंने आइडियली एक पेज भी रीड नहीं किया, सारा कंटेंट कहीं और से कवर कर लिया, और उसके बाद यहाँ जो इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू थे, इस दोनों मॉड्यूल के दोनों कर लिए, दोनों मॉड्यूल के सारे एमसीक्यूज कर लिए। उसके अलावा मैंने डायरेक्टर वाले चैप्टर में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल तरीके से फ्रेम हो रहे थे, तो मैंने अपने प्रैक्टिस पर्पस के लिए उन एग्जांपल्स को तो आगे और बीच बीच में एग्जांपल दे रखे डायरेक्टर वाले चैप्टर्स के, जो डायरेक्टर के 3 चैप्टर्स है उन सारे कर लिए थे। उसके अलावा और इतने मुझे न्यूमेरिकल उस टाइम शायद नहीं लगे थे, तो मैंने मेनली, मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ये कर दिया था। तो मैंने अब मैं समराइज कर लेती हूँ कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे। तो रिसोर्सेज में इनके ओनली एमसीक्यूज और डायरेक्टर वाले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल पार्ट वाले क्वेश्चंस, सिर्फ ये कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने हेवन सोमानी के पीडीएफ से जस्ट रीड किया था, क्योंकि ये वाला थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, और ये थोड़ा छोटा था, तो मुझे इसे पढ़ने में थोड़ा कंफर्टेबल। शुभम सिंह सर के नोट्स को मैंने जस्ट रीड किया था, ताकि मुझे वीडियो जो मैं देख रही हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई।
अगर आप हर्ष गुप्ता सर के वो 90 पेजेस को भी अच्छे से पढ़ सकते हो तो यू कैन रेफर दैट, वो भी अच्छे हैं, मैंने उसको भी गो थ्रू किया था कहीं ना कहीं, बट मेरे पास हार्ड कॉपी थी तो फिर मैंने मोस्ट प्रेफरेबली शुभम सिंगल सर के नोट्स को यूज किया था। वीडियोस मैंने हर्ष गुप्ता सर की देखी थी, नोट्स मैंने शुभम सिंगल सर के यूज किए थे। अब मैंने ऐसा क्यों किया था, वो मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किया था कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आता है। ओके, अब आ जाते हैं हम। उसके अलावा मैंने ऋषभ बेद, एक स्टूडेंट है फ्रॉम द साउथ पार्ट, उनका मैंने वीडियो रेफर किया था और उनके कुछ नोट्स में मैंने खुद भी लिखे थे। ये सारे नोट्स जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखे थे, बिकॉज मैं अब फर्दर कोई चांस नहीं ले सकती थी कि अब दोबारा मेरे अटेम्प्ट लग जाए, बिकॉज मेरे पास ना तो टाइम था इतना कि मैं इसको और ज्यादा टाइम डिवोट कर पाऊँ। तो इस वजह से दिस वॉज माई लास्ट, आई कैन से कि लास्ट चांस है बस। अब ये उसके बाद आई नीड टू स्टडी अदर सब्जेक्ट, नाउ आई हैव नो टाइम, तो बस बहुत हो चुका है, जो होना था वो हो गया। ओके उसके बाद आईसीआई के बीएस पोर्टल पे उसको भी मुझे गो थ्रू करना था, बिकॉज मेरा पर्पस था बस अब नो रिस्क ऐसा। तो उसमें मैंने सर्च आउट कर लिया कि मुझे, मैंने जनरल क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन किए, ऐसा नहीं कि मैंने वो नहीं किए थे, मैंने किए थे बट वो नहीं आए। बट जो चीजें रिपीट हो रही थी वो थी कि जो केस बेस्ड सिनेरियो है उसके कुछ टॉपिक, बट अदरवाइज आपको वाइंडिंग अप और दो चार टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाले, जैसे मिसलेनियस में भी बहुत सारे वो आते हैं, कुछ चैप्टर इजी है और हम उसे स्किप करते हैं, तो वो भी बहुत नॉनसेंस और बेवकूफी आई में से। और उसके अलावा मैं कहूंगी कि और आईसीआई के जो कुछ केस बेस दो है, अगर आप अंदर जाके देखोगे पोर्टल में ऐप में, तो जनरल भी है केस बेस भी है, तो केस बेस तो कर ही लेना। और जहाँ नहीं करो तो मैं बता देती हूँ, वाइंडिंग अप के तो कर ही लेना। और डायरेक्टर उसका भी ट्राई करना, हो सकता है आपको उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ऑन हो। और निधि कंपनी और इसका नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, उसका मटेरियल जो है कहाँ कहाँ से आता है वो मेक श्योर कर लेना। और उसके अलावा कोई क्वेश्चंस कोई यूट्यूब पे जो भी बता रहा है कि हमारे अटेम्प्ट में ये आया, हमारे उसमें ये आया, इसमें ये आता है, तो वो अच्छे से देख लेना, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं हमारे अटेम्प्ट में भी। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो प्रायर में अटेम्प्ट देके आया, उससे पूछो क्या क्वेश्चन आए, उसको उसी दिन पूछो, अदरवाइज वो खुद भूल जाएगा कि वो क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली उसके आए थे। सीरियसली ट्रस्ट में वो थोड़े टाइम बाद भूल जाएगा, तो बेटर है कि आप उसको उस दिन पूछ लो, उसके जो जो भी क्वेश्चन आए वो तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बिकॉज दैट इज इन योर हैंड। आप इजीली पूछ सकते हैं, वो इजीली बता देगा। और आपके उस क्वेश्चंस में से, जैसे वो बोलेगा निधि कंपनी से आया है, मिसलेनियस वाले में इसमें से आया है, डायरेक्टर वाले चैप्टर में से ये आ रहा है, न्यूमेरिकल में ये पूछा था, या फिर सीबी एलओडीआर में ये आया है, एफसीआर में ये आ रहा है, फेमा में ये आया, क्योंकि कुछ चैप्टर ट्रिकी पड़ेंगे वहां पे, बट फिर भी आपको हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास जो ये कंटेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्टली आपको भी मिल जाएंगे, बिकॉज मेरे क्योंकि आई वॉज सिटिंग not once, not twice, I was sitting at मतलब at my center third time, बट थर्ड टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस इस वजह से भी था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जहाँ मेरा सेंटर था वो जस्ट 200 मीटर 300 मीटर ही था मेरे घर से। सेकेंड टाइम पे भी अगेन 200 मीटर 300 मीटर भी था, बट थर्ड टाइम इट वॉज नॉट 200 300 मीटर, मुझे स्लॉट ही नहीं मिला, मुझे 300 नो नो 150 किलोमीटर ट्रेवल करके किसी थर्ड सेंटर पे जाना पड़ा। एंड दैट टाइम आई, मुझे एग्जाम देने पड़े, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक सा हो गया था वो वाला टाइम। और आई वॉज लाइक, मैं सेल्फ डिक्लेरेशन दे देती हूँ, आई वॉज बिफोर माई एग्जाम कि अब मुझसे नहीं हो रहा है। मतलब मैं एग्जाम की मॉर्निंग में वॉक कर रही थी और सेंटर पे जा रही थी, तो मैं ऐसा सोच रही थी, ओ गॉड, मैं सेल्फ डिक्लेरेशन देती थी कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, बस बहुत हो गया। बट व्हेन आई फाइनली, जब मैं एग्जाम के बाहर आई ना, तो दैट टाइम माय फेस विथ फुल ऑफ एज यूजुअल, जो पहले वाली स्माइल है दोबारा आ गई थी, बिकॉज फाइनली आई क्लियर्ड। एंड दैट टाइम आई स्कोर 70 मार्क्स एज वेल। एंड दिस टाइम मैंने पढ़ा था, बट सारी चीजों को अरेंज्ड वे में पढ़ा था, इस वजह से वो स्कोर हो गया था उस टाइम। अब मैं आपको एक पीडीएफ शो करती हूँ। यू में कंफ्यूज, आप वहां जाके है ना कंफ्यूज हो जाओगे कि एफडी में 6 मंथ था या आरडी में 12 मंथ था या क्या था। ये क्वेश्चन जो है ये प्लीज प्रिपेयर कर लेना इसको, कि एफडी का जो पीरियड है वो कितना है। एफडी का 6 मंथ है और मैक्सिमम 60 मंथ है, मिनिमम 6 मंथ है, मैक्सिमम 60 मंथ है। आरडी का मिनिमम 12 मंथ है, मैक्सिमम 60 मंथ है। अगर इसको लर्न नहीं किया तो वहां जाके नहीं याद आएगा,
ट्रस्ट में सच में याद नहीं आएगा। और पहले कैसे भी जैसे आपको लर्न होता है, वेदर फ्रॉम शॉर्ट ट्रिक से लर्न होता है तो शॉर्ट ट्रिक से लर्न कर लीजिए, जैसे जैसे लर्न हो रहा है वैसे वैसे कर लीजिए, बट इसको लर्न कर देना, डोंट स्किप दिस, अदरवाइज एग्जाम में नहीं आएगा, ट्रस्ट में नहीं आने वाला है। उसके बाद हमारा आता है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली आस्क क्या एग्जामिनेशन में पूछा था। तो जैसे कि ये केस स्टडी है, इस तरीके का कुछ पूछ रहे थे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को एक्सक्लूड करते हैं, वहां जाके कंफ्यूज हो जाओगे, रिवैल्यूएशन को रिजर्व एक्सक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, सारे रिजर्व लेने हैं या नहीं लेने हैं, कैसे आंसर आएगा। तो हो सकता है आप वहां जाके लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाओ। तो यही रीजन है कि हम पढ़ भी रहे हैं, सही से नहीं पढ़ रहे, और उसके बाद फिर वहां पे हमें क्लिक नहीं हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे या तो स्कोर कम आएंगे या फिर हो सकता है कि हमारे 50 ना आए। उसके बाद बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन व्हाट इज दी अर्ली रेमरेशन का इन केस ऑफ मैनेजरल रेमरेशन में जो लिमिट्स वगैरह है उसमें से कंप्यूटेशन वाले पार्ट में से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, तो प्लीज ट्राई टू प्रिपेयर दैट, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद बेस्ड ऑन अबाउ कंप्यूटेशन व्हाट इज ईयरली रेमरेशन, तो ये आप देख लेना कि बेस्ड ऑन अबाउ कंप्यूटेशन व्हाट इज द ईयरली रेमरेशन इन केस ऑफ मैनेजरियल पर्सन, जहाँ लॉस होता है वहाँ हमारा इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर रेमरेशन देनी पड़ती है। ये थोड़ा प्रिपेयर करना, क्योंकि इससे जो है केस बेस्ड स्टडी जो है थोड़ी घुमा के आती है, इसमें कंप्यूटेशन वाला पार्ट कभी कभी ट्रिकी भी आ सकता है, तो आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा। नेगेटिव है, लेस देन 5 करोड़ है, 60 लाख, किसके केस में कितनी एप्लीकेबिलिटी क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिट, ये भी आ सकता है कि क्वेश्चन सेक्रेटरियल ऑडिट लिस्टेड कंपनी के केसेस में हर टाइम, अनलिस्टेड में अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो, लोन एंड बोरिंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो ये सारी लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए, 50, 100, 250। इन हाउ मेनी डेज पब्लिक नोटिस कब दिया जाता है आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ IRP, तो वो है 3 days। उसके बाद सेबी की जो पेनल्टी फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वो मिनिमम इतनी है, मैक्सिमम इतनी है। सेबी की कुछ पेनल्टी तो डेफिनेटली आती है, मतलब पेनल्टी तो आती है और कुछ चीजें तो डेफिनेटली आती है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ COC मीटिंग कब होगी, 7 days ऑफ इट्स कंस्टिट्यूशन। ये जो है ना कॉपी पेस्ट आया था, ये वाला ये मैंने लिखा भी है, कॉपी पेस्ट आया था। जैसे अक्षरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कंपनी लिस्टेड, ये आपको ICAI के BOS पोर्टल पे ये क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए मैंने इसको इतना ज्यादा लिखा है बिकॉज मुझे क्लिक हो गया था कि हाँ ये ऐसा ऐसा आ रहा है। ये जुलाई 14 ऑल्ट्रेशन बिफोर 11 days, ये तो ये वाला जो है आपको ये ऑल्ट्रेशन करके कुछ ICAI के स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है उसमें भी मिलेगा। अकॉर्डिंगली आंसर्स ये लिमिटेड, अभी करेंटली जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो टुडे इज 26 नवंबर है, तो इमेजिन करो कि मैंने जो अपना एग्जाम दिया था वो अगस्त में दिया था, बिकॉज मेरा बीच में फिर एग्जाम आ गया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। बट मैंने इन पेपर्स को संभाल के इसीलिए रखा था, मेरा बहुत ऐसा था कि मुझे वीडियो बनानी है बट उस टाइम नहीं पॉसिबल हो पाया। तो बट स्टिल आई एम मेकिंग द सेम बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि डोंट डू दिस मिस्टेक, अदरवाइज अटेम्प्ट लग सकता है, और अटेम्प्ट लगता है, स्लॉट नहीं मिलता है, फिर टाइम जाता है, फिर हम दूसरी चीजों पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो ये भी रीजन है। तो ट्राई करो कि एक ही बार में हो जाए, और एक ही बार में थोड़ा बाद वाला स्लॉट बुक कर लो अगर पढ़ाई प्रिपरेशन नहीं हो रही हो तो, एक दिन में करना। और ये थोड़ा सा नॉनसेंस भी लगता है मुझे कि एक दिन में कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, अगर किसी ने पहले से पढ़ा हो तो वो एक दिन में कर सकता है, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा हो तो वो भी वो जो PDF है उसके थ्रू कर सकता है, बट वो जो PDF में जो जो लिखा गया था आप उसे लर्न कर लो प्रॉपरली। और लर्न नहीं कर पाओ तो फिर आप थोड़ा टाइम ले लो ताकि उसको थोड़ा रिकॉल कर पाओ, अगर वो भी नहीं किया तो फिर हो सकता है टाइम लग जाए। और लो में ऐसा न्यूज आ रहा था कि लो में लग गया है, किसका टाइम लग गया, तो मैं भी बहुत चिल आउट थी कि ठीक है लग जाएगा तो ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा स्टडी मटेरियल ये वाला, ये जो है कि इट इज सबमिटेड एंड ऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ये आपको स्टडी मटेरियल का 1 पॉइंट इतना थोड़ा बहुत अरेंज वे में दे आस्क, तो मतलब उन्होंने पूछा है स्टडी मटेरियल का ये जो पेज नंबर है उसमें से कुछ क्वेश्चन मिला था। सबमिटेड एंड अनऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल, तो कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट हुआ होगा, मैंने यहाँ लिखा है, मतलब कुछ आया होगा उसमें से। क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिस व्हेन शैल बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर दिस, तो ये आंसर इसका। उसके बाद केस स्टडी
फ्री रिजर्व ये है, एसेट्स, तो कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। तो अगर आपको वहाँ नहीं आए, इसलिए मैं पहले प्रायर में इन्फॉर्म करूँ कि आप कुछ ये इस टाइप के जो होंगे डिपॉजिट वाले, रिजर्व वाले, थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, उनको थोड़ा प्रिपेयर करके चाहिएगा। अमाउंट ऑफ लोन जो है इट कैन बी गिवन इफ डिपॉजिट ऑफ मेंबर इतना है, फ्री रिजर्व एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर अदर पब्लिक कंपनी में हैविंग जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो, कैन क्या कंपनी इशू कर सकती है आईपीओ या फिर सॉप आर आउटस्टैंडिंग। तो यस है या जो भी। और भी कुछ पूछा था, और एक बी सिनेरियो दिया था जैसे नेट टेंजिबल एसेट क्राइटेरिया रिलेटेड 3 करोड़ विद एट लीस्ट 50% मॉनिटरी एसेट। उसके बाद बुक बिल्डिंग, हाउ टू डिटरमाइन बुक शेयर प्राइस अंडर बुक बिल्डिंग इशू में कैसे हम उसको डिटरमाइन करेंगे, तो ये भी देख लेना। बुक बिल्डिंग मतलब क्या है, फिर मैंने पूरा बुक बिल्डिंग बैठ के पढ़ा था कि बुक बिल्डिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो कि अंडरटेक करते हैं हम, कैसे हम एनालाइज करेंगे डिमांड, कैसे हम असेस करेंगे प्राइस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव, कैसे वैल्यू कूपन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एज अ केस में बी इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन। बेसिकली बुक बिल्डिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है अबाउट एन अंडरराइटर अटेम्प्ट करता है टू डिटरमाइन द प्राइस एट व्हिच एन पब्लिक इशू विल बी ऑफर्ड। उसके बाद आता है कि ऋषभ वेद के पेपर से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि उनके टाइम में या और वैसे ही मैं फिर उस हिसाब से उस अप्रोच से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था कि पेपर में इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं, जैसे कि आरडी से पूछ रहे हैं, एफडी से पूछ रहे हैं, टेंजिबल एसेट्स के क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, उस पीडीएफ में ऐसा लिखा है, तो सारे सारे उस हिसाब से मोर देन वन हो सकता है, 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 मोर देन वन कंपनी में क्या एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हैव एनी रिलेशन इन ट्रांजैक्शन विद द कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, क्या ये डायरेक्टर वो रीअपॉइंट हो सकता है, क्या निधि कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, क्या डिपॉजिट लैंड कर सकती है, क्या मनी पर्सन अदर देन मेंबर्स, क्या टाइम लिमिटेड फॉर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी टू सुप्रीम कोर्ट की टाइम लिमिट, हु कैन बी कौन अपॉइंट हो सकता है एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, आईबीपीआई, तो ये व्हेन कंपनी इज एलिजिबल फॉर आईपीओ नेट टेंजिबल। तो मतलब जब कोई और बता रहा होगा वीडियो में कि ये आता है ये आता है, तो हम कंसंट्रेट नहीं करते और फिर वो एग्जाम आ जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पीडीएफ का रट्टा मार लो, एज इट इज पीडीएफ लर्न हो, तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सारे क्वेश्चन मतलब यू नीड टू कैटेगराइज द पेपर इनटू 1 2 3। ये भी मैंने किसी से सीखा था कि हमें अपना पेपर जो कैटेगराइज करना है 1 2 3, सारे में तुक्का नहीं लगाना। पहले वो क्वेश्चन करो जिसमें यू आर 100% श्योर। अगर 100% श्योर वाले क्वेश्चन के अगर 20 क्वेश्चन भी ऐसे मिल गए कि जहां पे आप 100% श्योर हो, तो आपका आधा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद मतलब आइडियली कितने क्वेश्चन आते हैं, इट वाज 100 मार्क्स पेपर, तो क्वेश्चन थे अराउंड 50 होंगे, 52 मार्क्स लीज तो 100 हो गए होंगे, तो फिर 3 में 20 मार्क्स आते हैं, यानी कि 40 तो आपको शॉर्ट आने वाले। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप 70 to 80% श्योर होंगे, तो उसको भी टिक कर लो, उसमें से आधे तो करेक्ट हो जाएंगे। तो आप हम कुछ जो है हम श्योर नहीं होंगे, हाँ आता है, हाँ ये लग रहा है, ये वो लग रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड करना और देखना कि कितने एक्यूरेसी से आ रहे हैं, कितने 75 to 80% आ रहे हैं, कितने जो है हमें 50-50% आ रहे हैं। तो उससे आपका आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपका पेपर तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो भी मार्क्स ऊपर आए उससे जितने रिक्वायर्ड वो सारे बोनस मार्क्स है। उसके बाद क्या कंपनी इशू कर सकती है आईपीओ सॉप्स आर आउटस्टैंडिंग, तो मिनिमम असेट अलॉन्ग विद मॉनिटरी एसेट लिमिट क्राइटेरिया, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे शेयर प्राइस अंडर बुक बिल्डिंग इशू को बताना है। कंसेंट हाउ मेनी, कितने क्रेडिटर्स की फॉर कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए चाहिए। ऑब्जेक्शन टू सीडीआर, हाउ मेनी आउटस्टैंडिंग, तो ये आपको ऋषभ की वीडियोस में मिल जाएगा, बट आई हैव आल्सो प्रिपेयर व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग, तो मैंने भी लिखा था, तो दैट व्हाई आई एम आल्सो डिस्कसिंग कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है या फिर इससे सिमिलर और ऐसे जो क्वेश्चन है उस तरीके से ड्राफ्ट हो सकते हैं, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। टाइम पीरियड क्या है, कैसे हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं फॉर डिमांड नोटिस सेट बाय द ओसी टू द सीडी अंडर आईपीसी। टाइम पीरियड क्या फॉर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ सीआरपी एप्लीकेशन बाय डबल ए अंडर आईपीसी। क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस एंड दिस। वैलिडिटी क्या है, सीओआर ऑफ ट्रस्ट, शायद कूलिंग पीरियड क्या फॉर विच योर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी ग्रांटेड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एफसीआरए रेगुलेशन। कुछ क्वेश्चन तो होगा कि आपको कुछ जैसे कि कुछ क्वेश्चन था मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहे, पर कुछ चैप्टर ऐसे थे फेमा के और ऐसे कुछ की मतलब उसकी मुझे पढ़ने के बाद भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे, अलग ही क्वेश्चन लग रहे थे, तो मुझे नहीं आ रहे, तो फिर मैंने उसमें 50-50% वाली कैटेगरी में उसे डाल दिया होगा। उसके बाद मैक्सिमम टाइम पीरियड की अप टू विच पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी मेड बाय दिस। और एमसीक्यू टेस्टेड फ्रॉम बीओएस के पोर्टल से, जो मेरे एग्जाम में वाइंडिंग अप के क्वेश्चन जिस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाल रही थी कि वाइंडिंग अप के एक्जैक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे कि रोल के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप। सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शैल मेक एन एंडोर्समेंट टू द फैक्ट इन एज रिकॉर्ड रिलेटिंग टू, मैं तो एज इट इज इनको लर्न करी थी विंजर टेस्ट लिमिटेड एंड नोटिफाई द ऑफिशियल, क्योंकि ये आया था, क्योंकि मैंने शायद 2 मार्क्स मैंने लूज कर लिए थे अर्लियर, तो फिर मैंने इसमें लिख दिया था। उसके बाद फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज एविडेंट दैट मिस्टर रोहन शेयर्ड इनहेरिटेड दिस। फिर उसके बाद मिस्टर रोहन शेयर्ड वर एलिजिबल signed the winding up petition devolved upon on the death of the father Mr. Mools and the former, हो सकता है name change हो जाए but case study almost same रहेगी। From the case scenario it was noticed that out of the 500 who are partly contributories and share, तो ये question भी repeat हुआ था, every unpaid shareholder of Windsor this limited is a contributory is liable to pay to the extent of unpaid amount on a share irrespective of his shareholding। उसके बाद the company liquidate, फिर से दूसरे भी मैंने आसपास वाले जो है आईसीआई के बीओएस पोर्टल वाले में लिखती है, तो वाइंडिंग अप क्या प्रिपेयर करना है। उसके बाद फिर से ऋषभ बेद ने जो मिसलेनियस टॉपिक की अच्छे से कवरेज करा रखी है, जिसकी निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, रजिस्टर्ड वैल्यू और रिवीजन वीडियो एंड ऑल, मिसलेनियस प्रोविजन निधि कंपनी which is incorporated with object of developing habit of thrift and reserve fund among members, CG shall upon receiving application in NDH किस फॉर्म में पब्लिक कंपनी डिक्लेयर करेगी। एप्लीकेशन अंडर पॉइंट ऑब्जर्व टू द फिल्ड बाय कंपनी विद 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक्स्ट्रा दिस, इफ NDH 4 नॉट फाइल्ड इट कैन नॉट फाइल दिस। फिर इंपॉर्टेंट प्रोविजन, निधि शैल बी पब्लिक कंपनी मिनिमम दिस, निधि कंपनी के नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर्स, एवरी निधि कंपनी शैल लास्ट टुवर्ड्स निधि लिमिटेड, एवरी निधि कंपनी नॉट लेस देन 200 मेंबर्स। तो मतलब इन क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद मतलब पढ़ना और इन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सो दैट वी कैन गेट दी
अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं. एड ऑन फंड क्या है? ऑफ रुपीज 10 लाख और मोर unencumbered term deposit not less than 10% of outstanding deposit. Add on fund to deposit ratio not more than 1:25. Form MIDI NDH for statutory compliance within 90 days from the end of financial year. It does not comply with the point D above, and said fund cannot acquire, cannot this. So you can simply pose and read the same. Business of accepting deposit, pledge any taken deposit, enter into, issue advertisement for soliciting deposit, pay any brokerage incentive for mobilizing, raising loans from bank, FI or any source for advancing loans to members. What are the private circulation to members allowed? Every Nidhi company shall issue fully paid up shares. Audit each deposit holder minimum can, and this shares equivalent to this. A security saving account holder, recurring deposit holder. ये मेंबरशिप बॉडी कॉर्पोरेट मेंबरशिप नो माइनर अलाउ. तो ये थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा. ये मेनली ये एफडी और आरडी वाले यहाँ से क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं. रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, मिनिमम बैलेंस क्या है, इंटरेस्ट क्या है. तो ये जो आपको है किसी ना किसी वीडियो में भी मिल रहा होगा ये सारे क्वेश्चंस. एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग डोरमेंट कंपनी. तो ऐसे करके मैंने तो 58 पेजेस लिखे हैं. इतना ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, बट उस टाइम मैंने प्रिंट नहीं निकलवाया था तो मैंने लिख दिया था साइड बाय साइड. फ्लो चल रहा था तो चल गया. फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन मैंने बहुत ही ज्यादा मैसी से राइटिंग में लिखा था बिकॉज दैट टाइम आई वाज रीडिंग. तो इतना राइटिंग वेटिंग तो आई वाज लाइक जाने तो इसको तो रजिस्टर्ड वैल्यू. इंटीमेशन ऑफ फ्रॉड, गवर्नमेंट कंपनी, कितने शेयर्स किसने हायर कर रखे हैं. सेक्शन 47 पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड, नो पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, इम्प्रिजनमेंट, मिसलेनियस प्रोविजन के एमसीक्यूज. तो यू कैन सिंपली ये फॉर सच शॉर्ट नोट्स यू कैन यहाँ से देख लो जितना समझ आ रहा है. उसके बाद यू कैन सिंपली what you can do is you can follow for short notes. Rishabh, you can refer Harsh Gupta sir PDF. You can refer Shubham Singhal sir PDF. Anand Somani sir PDF. You can follow the PDF for MCQs. So short note that is Manmohan Gupta. एक और कोई है I don't remember the same. And you can refer even Vaibhav Bansal PDF. वो भी अच्छा है. मैं तो दोनों PDF से पढ़ा था. मनमोहन गुप्ता and एक और किसी author का था. And one more that is Vaibhav Bansal. दोनों की PDF में मैंने दोनों पढ़ के गई थी because दोनों के PDF में से questions थे. क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एक पीडीएफ में थे क्वेश्चन, दूसरे में नहीं थे, दूसरे में थे एक में नहीं थे, तो मैंने दोनों पढ़ लिए थे. उसके बाद कंपनीज अरेंजमेंट एंड अमल कमीशन. तो मेनली तो पीडीएफ ने सबसे ज्यादा काम किया था. पीडीएफ ने, ऋषभ बेग के नोट्स ने, और बाकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने बाकी चीजें रेफर की थी. और आईसीआई के स्टडी मटेरियल, आईसीआई के स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चन में तो हमें सारा पढ़ना पड़ेगा. एक बार पढ़ लो तो एक बार में हो जाएगा. दो दूसरी बार में पढ़ोगे तो दूसरी बार में होगा. और आई डोंट नो फर्दर बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा हुआ था. आई डोंट नो. यस तो मैंने क्या किया था कि कुछ केस स्टडी में एरर भी थी, कहीं ना कहीं वो खुल नहीं रही थी. तो वाइंडिंग अप का मैंने केस स्टडी किया था. अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन मैंने भी सारे नहीं हुए थे मेरे. वाइंडिंग अप वाली का केस हो गया था. अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन का हो गया था. अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन मैंने इन्हीं को टारगेट किया था क्योंकि मुझे इनमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ताकि इनकी जो क्वेश्चंस की मेरे प्रैक्टिस हो जाए. अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल. फिर ये जैसे आईबीसी, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, मीटिंग. कुछ चैप्टर बहुत इजी है, कुछ थोड़े ट्रिकी है. जैसे कि फेमस शायद थोड़ा ट्रिकी था. एफसीआरए भी मुझे थोड़ा सा ऐसा हो रहा था. मतलब पढ़े सारे थे, फिर जो आ गए वो आ गए और जो छूट गए वो ऐसा था. अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन डायरेक्टर वाला चैप्टर तो कोई स्किप नहीं किया था. उसके बाद कंपनी लो तो इजी थी. और उसके बाद ये पीछे वाले चैप्टर में भी कुछ इजी थे. जैसे सेबी की पेनल्टीज इजी पड़ती है, आईबीसी इजी था, फेमा. और इनमें से कुछ क्वेश्चन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे. जो नहीं आ रहे थे फिर वो ऐसे ही जा रहे थे. आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयड यूज, ऑपरेशनल डेट, लीज रेंटल एरिया इन ऑपरेशनल डेट. उसके बाद मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स. फिर ऐसे कुछ कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में भी पूछे जा रहे थे. फिर एमसीक्यू वाले डेज वाले, कौन होगा क्रेडिटर होगा, 7 days होगा या नहीं, इंडिपेंडेंट वर्किंग, दिस क्वार्टर सेबी है, ट्रिब्यूनल है, कौन है. तो फिर वहाँ थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. वाइंडिंग अप वाला चैप्टर, दिस प्रेफरेंस, वर्कमैन अमाउंट, ये भी शायद कुछ ऐसा कुछ कैलकुलेशन का कोई पार्ट आया था तो मैंने उसको करा था. आईबीसी में वी नीड टू डू दैट. एंड हाउ मेनी डेज पब्लिक नोटिस. तो 3 days एग्जाम्स में आया हुआ है. 7 days ऑफ इट्स कंस्टिट्यूशन. हाउ मेनी डेज एनसीएलटीज 14 days अप्रूवल, डिसअप्रूवल कम्युनिकेशन बाय एनसीएलटी 7 days. आईआरबी नेम टू बी प्रपोज्ड. एंड ऐसा तो आईपीसी वाला चैप्टर तो इजी है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो इट इज लेस टाइम में कवरेबल है आईपीसी वाला चैप्टर. और इजी क्वेश्चन आएंगे, बस हमें थोड़ा सा एफर्ट करके उसके डेज और परसेंटेज और ये सारा लर्न करना पड़ेगा. उसमें थोड़ी सी एफर्ट है, बाकी इजी टू डू. वहाँ पे हमें इजी पड़ेगा आईपीसी वाला चैप्टर. तो
फिर एफसीआरए में भी कुछ तो इजी है, जैसे सर्टिफिकेशन का ड्यूरेशन और ऐसा, और डेज वगैरह आ गया और कुछ अलग आ गया। तो सेबी की एलओडीआर वाली पेनल्टी कुछ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमा, ये सारे तो ये पीडीएफ का कंटेंट ही है, बट पीडीएफ हमें दोनों से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वैभव बंसल प्लस मनमोहन गुप्ता वाला जो कंपाइल्ड पीडीएफ है, उन सारे को लर्न करना है, लर्न कर लो, कैसे भी लर्न तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद उसके अलावा जो आपको बेटर और सुटेबल लगता है दैट यू कैन डू, जो भी बेटर लगे, सुटेबल लगे, दैट यू कैन डू। तो एट द एंड वन थिंग आई वांट टू कंक्लूड, तो आइडियली सेट ए में किसी का अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए, नंबर वन, बट मेरा लगा है नॉट वन नॉट ट्वाइस बट थर्ड वाले में फाइनली क्लियर। तो फर्स्ट टाइम आई रीड, थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, एंड उसके बाद स्लॉट बाद में था तो मैंने टोटली रख दिया था। फिर एग्जाम वाले दिन थोड़ा बहुत पढ़ा था और थोड़ा बहुत रीड कर लिया था, बट वहां जाके मुझे एक्चुअल में चीजें याद नहीं आ रही थी, एंड दैट टाइम आई स्कोर 40 इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। देन आफ्टरवर्ड्स स्लॉट मुझे मिला नहीं था, और स्लॉट और मेन एग्जाम में अराउंड 10 to 11 डेज का गैप आ गया था, तो वो गैप नहीं आना चाहिए, इतना ज्यादा गैप नहीं चाहिए। गैप आ गया था तो आई वॉज प्रिपेयरिंग कि मेरा एफआर के लेक्चर जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं, और उसको एक्सटेंड कराना, फिर से उसमें पैसे लगाना, और मैं फिर उसको देखूंगी भी नहीं, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई एफआर दैट टाइम। तो फिर मैंने उसको इतना लाइटली लिया था, बट और आई थॉट कि एक दो दिन पढ़ लूंगी हो जाएगा, बट वो इतना प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। तो फाइनली आप ना, इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम दे दिया आपने और फिर 11 डेज का ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद सेकंड बार दिया, अब दोबारा स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो दोबारा 11 डेज में आना था मेरा थर्ड स्लॉट, बिकॉज मेरी सिटी में दैट वाज नॉट अवेलेबल दैट टाइम। तो आई वाज लाइक कि अब इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती, बिकॉज अब 11 दिन बाद दोबारा से फिर से ऐसे हो जाएगा, तो आई सर्च आउट द नियर बाय स्लॉट जितना, और आई टेक अराउंड कि सेकंड टाइम आई गॉट 36 ओनली, नॉट इवन 40 प्रॉपर्ली। सेकंड टाइम आई गॉट 36, तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि अब इतना ज्यादा टाइम नहीं डिवोट कर सकती, मुझे आ रहा है बट मुझे सारी चीजों को अरेंज करके प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, कुछ चीजें जो है लर्न करनी है। तो थर्ड टाइम आई फाइनली स्कोर 70 आउट ऑफ 100, एंड दैट टाइम इतना ब्रेक नहीं लिया था। आई सर्च आउट द नियर बाय स्लॉट, नहीं आना है मेरी सिटी में तो जाने दो, आसपास देख लेती हूँ, एक दिन जाएगा मेरा इधर उधर आने जाने में, बट दैट टाइम आई बुक्ड एंड आई टेक 3 to 4 days, बट या 4 days आई प्रिपेयर प्रॉपर्ली, उसमें वीडियो भी देख लिया, सारा पढ़ लिया और सारी चीजें, और मतलब अराउंड 4 to 5 days आई कैन से, मतलब जस्ट लोड पे आ रहा था, बट नॉट दैट मच टाइम टू लर्न टेस्ट, बहुत ज्यादा हो जाते, तो 4 to 5 days में फ्लो कंटेंट थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया था, क्वेश्चंस का भी पता चल गया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट के जो बीएस पोर्टल से वहां से भी कुछ क्वेश्चंस जो है एज इट इज मिल रहे थे। उसके बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी आई प्रिपेयर्ड द न्यूमेरिकल सम्स फॉर स्पेशली फॉर डायरेक्टर्स, क्योंकि उसमें मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी, तो दैट टाइम मैंने सारी चीजों को कंपाइल तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ा। आई राइट, नॉट जस्ट राइट, आई लर्न टू द पॉइंट, जो जो थे पीडीएफ में, द वैभव बंसल, द मनमोहन गुप्ता, एज इट इज सारा पढ़ लिया था, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, आई में से हाँ बनते हैं। और उसके अलावा जो पुराने क्वेश्चन आए थे डेट आई कि हाँ ये आया था ये आया था, और जो दूसरे बता रहे हैं उस हिसाब से भी उनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आ गया, सारे नहीं आते, कुछ आ जाए तो आ जाए ऐसा, तो सारा अरेंज तरीके से पढ़ने के बाद फाइनली आई क्लियर द सेम। तो टफ नहीं है बट इजी भी नहीं है, बिना पढ़े क्लियर नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे एक बार या तीसरी बार, दैट्स योर चॉइस। ऑलराइट, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, होप दैट you find the content meaningful to you. I know this is so long, it is almost 1 hour, but try to make it arrangeable as per your convenience, 2 के स्पीड में देखना, एंड बीच में जो अजीब सा कंटेंट दिखे उसको थोड़ा स्किप करके आगे ले जाओ। ऑलराइट, so this is from my side.